Project manager? Yes, 15 years of experience. Do you have any AI certifications? No, but I'm a fast learner. We'll be in touch. I don't see any AI. A-A-I-O. A-A-I-O-U. Oh, now vowels have two sounds each, but they don't sound the same. One is short, yeah, real short. The other one's long and says its name. So एज यू कैन सी हियर दिस इज अ शॉर्ट वॉल। इस तरीके से आप बच्चों को सिखा सकते हैं। फिर इसके बाद मैं लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल का जॉलीफोनिक साउंड भी बताऊंगी। सो ये है शॉर्ट वॉवल फ्रॉगी, दिस फ्रॉगी इज शॉर्ट एंड दिस फ्रॉगी इज लॉन्ग। ओके, सो आप बच्चों को बता सकते हैं कि ये शॉर्ट वॉवल है और ये लॉन्ग वॉवल है। शॉर्ट वॉवेल का साउंड ये अभी बताएगा और उसी के साथ ये लॉन्ग वॉवेल का साउंड बताएगा। तो दोनों को कंपेयर करके बच्चों को जब हम सिखाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इसका साउंड इधर ए आ रहा है तो इधर ए बोलना है, इधर ए आ रहा है तो उसे ए बोलना है। तो बस अभी फिलहाल हमें बच्चों को इतना ही बताना है कि वॉवेल का साउंड शॉर्ट होगा तब ए ई ओ अ साउंड आएगा। वॉवेल का साउंड जब लॉन्ग होगा तो ए ई आई ओ यू, यानी उनका नेम ही उनका साउंड होगा। फिलहाल में उनको यही बताना है। जैसे जैसे बच्चे की क्लास आगे बढ़ेगी वैसे बच्चे को जब स्पेलिंग रूल्स पता चलते हैं तब बच्चे को पता चल जाएगा कि कब लॉन्ग वॉवेल यूज करना है और कब शॉर्ट वॉवेल यूज करना है। अभी क्या है, अभी बच्चे को हम स्पेलिंग्स का सिर्फ इंट्रोडक्शन बताते हैं, तो उसको कैसे रीड करना है, कैसे ब्लेंड करना है, ये सिखाना होता है प्री स्कूल में। बट जब बच्चा क्लास 1 में चला जाता है, जब वो खुद स्पेलिंग क्रिएट करने लगता है, तब उन्हें हम स्पेलिंग रूल्स जब बताते हैं तब हम बता सकते हैं कि ये लॉन्ग वॉवेल साउंड क्यों आ रहा है। ठीक है ना, तो तब तक आपको भी स्पेलिंग रूल्स का नॉलेज हो जाएगा, तो फिर हम भी आपको तभी बताएंगे। ठीक है। the short A says apple, and the long A says acorn. The short E says elephant, and the long E says eagle. The short I says insect, and the long I says island. Let's take a break. Here we go. Short O says ostrich, and the long O says oatmeal. Short U says umbrella, and the long U says unicorn. Vowels have two sounds each. They don't sound the same. One is short, yeah, real short. The other one's long and says its name. So this was about the short and long vowel। अब हम आपको बताएंगे लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉवेल का जो सॉन्ग है। I can teach you code in Python in just 30 days, even if you've never written a single line of code before. How? Simple. In my 30. This is same, where is that gone?
short vowels that we use. A vowel is in every word, every word, every word. A vowel is in every word that we read or write. A-E-I-O-U, A-E-I-O-U, A-E-I-O-U are long vowels that we use. Ah, ah, answer my arm, ah, ah, answer my arm, ah, ah, answer my arm, they're causing me alarm. Eggs in the pan, eh, 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 eggs in the pan, eh, 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 eggs in the pan, eh, 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 crack the egg like this, eh. Minky the mouse is my pet, she spilled the ink and got wet. The ink is spread all over the nest, ink is wet. Now it's dark, the lights go on, oh, 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 oh. Time for bed, the lights go off, oh, 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 oh. Up, up, up go umbrellas, up, up go umbrellas, up, up go umbrellas, when it starts to rain. My ear hurts, I was in pain, My ear hurt, I was in pain, what did you try to say? The donkey in a stall, E-O, is its call. Captain said the captain said I. Stand up straight, don't be late, the captain said I. Oh, did you see the billy goat? Oh, 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 did you see the billy goat under the old oak tree? I'd like to have a barbecue, you. I'd like to have a barbecue with you and you and you. Search for Ping Pong on YouTube. So this was the vowel song and the jingles. अगर आपको लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल एक साथ पढ़ाना है तो इस तरीके के वीडियोस दिखा के आप पढ़ा सकते हैं। और जॉली फोनिक्स का वॉवल सॉन्ग भी मैंने आपको बताया। ये जो अभी सॉन्ग था A-E-I-O-U, A E-I-O-A, A-E-I-O-U, ये वाला जो ट्यून है ये वॉवल सॉन्ग है। इसको दिखाकर आप बच्चों को लॉन्ग वॉवल और शॉर्ट वॉवल दोनों अच्छी तरीके से करा सकते हैं। ओके, आई होप आज आपको लॉन्ग वॉवल शॉर्ट वॉवल पूरी तरह से क्लियर हो गया। एनी डाउट्स? मैम एक चीज है, जैसे बच्चों को कैसे बताएंगे कि कहाँ पर लॉन्ग वोवेल का साउंड लेना आगे है, पता कहाँ पे चलेगा, शॉर्ट आगे वोवेल? पता चलेगा स्पेलिंग रूल्स। ओके ओके ठीक। अच्छा अच्छा ये ठीक। यहाँ पर वही कह रही हूँ, यहाँ पर छोटे बच्चों का है, प्री स्कूल तक का ही आपको लॉन्ग वॉवल शॉर्ट वॉवल इंट्रोडक्शन देना है ताकि बच्चों को डिफरेंस पता चले कि ए लेटर के दो साउंड होते हैं, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। तो शॉर्ट वॉवेल में उसको ए पढ़ा जाता है, लॉन्ग में उसको ए पढ़ा जाता है। अभी फिलहाल बच्चों को इतना ही बताना है क्योंकि देखिए आप अभी एडल्ट हैं, आपको पता है तो आपके पास डाउट आ रहा है, बच्चे के पास डाउट नहीं आएगा। बच्चे को जो आप बताएंगे वो वही बोलेगा। बच्चे को आप बता रहे हो कि इसको ए पढ़ना है और इसको ए पढ़ना है, ठीक है ना। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होगा ना तब उसको क्वेश्चंस आते हैं माइंड में, तो वो यूकेजी 4-5 इयर्स का होगा तब तक, यूकेजी तब तक आप उसको स्पेलिंग रूल्स भी बता देंगे। तो मैजिक ई रूल होता है और सिलेबस का कॉन्सेप्ट होता है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट जब हम आपको बताएंगे तो वो वर्ड जब आएगा ना उस वर्ड में क्या रूल लग रहा है वो लगाकर फिर आप बता सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ऐसा देखिए कोई एक स्पेसिफिक रूल नहीं रहता है, अकॉर्डिंग टू द स्पेलिंग रूल इट अप्लाइज इन टू द वर्ड। तो हम आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स बता देंगे। तो जब बच्चा को आपको बताना होगा ना कि यहाँ पर ए क्यों आया, जैसे अभी ये स्क्रैच गार्डन में एप्पल और एक रन था, तो वो जो एक रन आ रहा था वहां पे श्वा वाला रूल फॉलो होता है। तो अब ये तो बच्चे को आप उस समय नहीं बता सकते, फिर आपको उसको श्वा बताना पड़ेगा क्या होता है। तो आप जब स्पेलिंग रूल्स पूरी तरीके से पढ़ लेंगे तब आपको पता चल जाएगा उस वर्ड में वो साउंड लॉन्ग क्यों है और उस वर्ड में वो साउंड शॉर्ट क्यों है।
ठीक है, तो उसके अनुसार आप बच्चों को तब बता सकते हैं, बट देर इज नो सिंगल स्पेसिफिक ट्रिक टू से दैट व्हाई दिस लॉन्ग vowel has come here and why short vowel has come here. So initially at the preschool stage we only have to make them understand the difference of the sound, long vowel sound and short vowel sound. Short vowel sound says a and long vowel sound says a, e, e, I और ए, ई, अ, ओ एंड अ, यू। ओके, सो पहले आप उनको सिर्फ इतना ही बताएंगे, फिर जब आपको स्पेलिंग रूल्स पता चल जाएगा तो ना पर्टिकुलर वर्ड विच स्पेलिंग रूल इज अप्लाइड, और फिर आप कर पाओगे। जब आप ये पूरा समझ जाओगे स्पेलिंग रूल्स, यू विल अंडरस्टैंड इट। ठीक है मैम? एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम जैसे हम जो प्री नर्सरी के बच्चे, नर्सरी क्लास का बच्चा है सपोज, तो उनको जब अल्फाबेट्स पढ़ाएंगे मैम हम, तो जैसे पहले पैटर्न्स पढ़ाते हैं उनको, पैटर्न्स जब पढ़ाते हैं तो पैटर्न्स के बाद क्या हमें, मतलब जो पैटर्न से स्टार्ट होते हैं अल्फाबेट्स, फॉर एग्जांपल स्टैंडिंग लाइन या स्लीपिंग लाइंस, उन्हीं को लेना है, मतलब उन्हीं को लेना चाहिए, या हम उसको एक जो ऑर्डर है उसमें पढ़ा सकते हैं? मैम आप पीएस ब्रिज कर रहे हो, ओनली फोनिक्स कर रहे हो? नहीं, मैं तो मैम फोनिक कर रही हूँ, बट ऐसे मत, ओनली आई एम फोनिक्स जस्ट कर रहे हो आस्किंग ना? क्वेश्चन। ठीक है, ये जो यस मैम। इसमें मैंने है ना वो लिंक जो शेयर किया है ना, उसमें आप देखिएगा, जो आपका ये क्वेश्चन है ये पीएस ब्रिज वाला क्वेश्चन है। हमने इसीलिए हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट से स्टार्ट किया था मैम। पहले बच्चों ओके। को पैटर्न्स ही कराया जाता है, बट यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट करना है। सी, फोनिक्स इज समथिंग विच वी लिसन एंड स्पीक, बट पैटर्न्स इज यस। समथिंग विच वी मेक। तो जब इधर राइटिंग और फॉर्मेशन वाला पार्ट आएगा उस समय पैटर्न से ही स्टार्ट करना है, बट व्हेन वी आर स्पीकिंग एंड व्हेन वी आर लिसनिंग तो उस समय फोनिक्स यस। से ही स्टार्ट होगा। सो इट वेरीज मैम कि आप शुरुआत कहाँ से कर रहे हो, क्या चीज पढ़ा रहे हो। अगर ओरल्स की बात आ रही है तो फोनिक्स से स्टार्ट करेंगे, रिटन्स की बात आएगी तो पैटर्न से स्टार्ट करेंगे। और वो हैंडराइटिंग इम्प्रूवमेंट वाला जो पार्ट था ना, वो पार्ट हमने इसीलिए कराया था इनिशियली, क्योंकि ये साइमल्टेनियस चलता जाए, क्योंकि बच्चों को इनिशियली पैटर्न्स, कर्व्स, ये सारी चीजें देते जाए, उस दौरान हम बच्चों को ओरल्स में फोनिक्स कराते जाए। राइट? यस मैम, बट आई होप आपका डाउट क्लियर है मैम, मैम। मैं आई जस्ट वांट टू आस्क मैम, हम्म ये जो फोनिक्स कोर्स है, ये जो ब्रिज कोर्स आप बोल रहे हैं, ये दोनों डिफरेंट हैं क्या? व्हाट इज द डिफरेंस मैम? फोनिक्स में ओनली फोनिक्स आप कर सीख रहे हो, ब्रिज कोर्स में आप पूरा चीज सीखते हो, हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट, फिर उसके बाद आप फोनिक्स, फिर जॉली ग्रामर, फिर पब्लिक स्पीकिंग, और फिर इसके बाद में क्रिएटिव राइटिंग, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। तो आप मतलब बच्चे को लैंग्वेज की किस तरीके से बच्चे का फ्लो बनाना है वो पूरा आपका प्रॉपर सेट बन जाता है हर एक चीज का। और फोनिक्स इज ओनली फोनिक्स जहां पर आप सिर्फ लेटर साउंड्स और स्पेलिंग रूल से सीखते हैं। ठीक है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी ये जियोमी नाम से जिसका भी है, प्लीज आप डिवाइस को म्यूट कर लीजिए क्योंकि बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है। अगर मैम जी, अगर ये पीएस ब्रिज कोर्स करना हो बाय द वे, तो इसमें अभी एनरोल तो कर सकते अभी हैं? तो बिकॉज हाँ वो मैंने तो हो जो, जाएगा मैम, हैंड राइटिंग मैंने लिंक भेजा है उसमें, मैं उसी में ऐड करती जा रही हूँ। सो यू कैन सी द हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट वाले वीडियोस देख लीजिए और इसको कंटिन्यू कर लेंगे। तो ये ठीक कितने है, दिन वो का कोई होगा मैम? दिक्कत वाली जैसे बात नहीं। लेकिन जो उनका नहीं, क्वेश्चन था कि पैटर्न से स्टार्ट करना चाहिए या फोनिक्स से, तो बस वही है कि देखिए इट वेरीज। देखो पैटर्न फॉर्मेशन चीजें अलग अलग हैं, जो पार्ट आपको सिखाना है उसका स्टार्टिंग क्या है तो उसके अनुसार चीजें चलेंगी। ठीक है ना? तो इट गोज साइमल्टेनियस। मतलब अगर ये जो ब्रिज कोर्स है मैम, जैसे फोनिक्स है, ये 20 डेज का है? हाँ, ये पूरा ब्रिज कोर्स 6 मंथ्स का है। ओके मैम, तो 6 मंथ्स का जो है वो कितनी है, की फीस कितनी है? बिकॉज हमने सिर्फ 1,000 रुपीज पे किया था। हाँ मैम, जो वो मैम मैं आपको पर्सनली बता देती हूँ सारी चीजें, वो आप टेंशन मत लो, वो करवा देंगे आप। ओके मैम। अब हम ओके। हैं तो क्या टेंशन ले रहे हो आप। तो वो एक्चुअली उनका वो डाउट आया ना, इसीलिए मुझे लगा कि मैम ने ओनली फोनिक्स के लिए किया होगा, तो मैं वही कह रही थी कि आप हैंडराइटिंग वाले वीडियोस देख लीजिएगा तो उससे आपको प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा।
ठीक है अनुश्री मैम, क्लियर हुआ आपको? अनुश्री नाम किसका है? आपकी बेटी का है? जैसे क्या मेरे को सर्टिफिकेट्स बनाने पड़े? ओके, द टाइम हैज बीन डन, तो अब ये समय हो चुका है, दैट्स वाई शायद मैं ऑडिबल नहीं थी। सो ठीक है, किसी को कोई और डाउट तो नहीं है? वी कैन लीव द सेशन। मैम एक डाउट है मैम, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिए।